Hi, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and today's topic is maps. Okay, so what will you learn in this chapter? You will learn what is a map, okay, and what is a globe, what is the difference between map and a globe, and how many type of maps are there, components of map, sketch, what is plan, and then some exercise. So let's start now. Okay, maps. Okay, you have learned in the previous chapter about the advantages of globe. Globe के क्या क्या advantages हैं? Okay, however globe has limitations as well. Globe की कुछ limitations भी हैं, कुछ कमियां भी हैं. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं ऐसे टाइम पे हम we can use globe. Okay, but when we want to study only a part of the earth, कोई छोटा सा हिस्सा अगर हम सीखना चाहते हैं, जैसे हमारा कंट्री हो गया, कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, टाउन्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर विलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. तो हम ग्लोब की सहायता से नहीं पढ़ सकते. ओके, इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप्स. हम क्या यूज करते हैं? मैप. जब हमें किसी छोटे हिस्से के बारे में पढ़ना हो, स्टडी डिटेल में स्टडी करना हो, तो उस केस में हम ग्लोब नहीं कर सकते यूज. हम क्या करते हैं? मैप यूज करते हैं. अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ सिचुएशन. अ मैप is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn in a flat surface according to a scale. So what is a map? Map is a representation. या तो मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है. किसकी ड्राइंग है? ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस की ड्राइंग है, या पार्ट ऑफ इट, या छोटा सा हिस्सा कोई अर्थ का हमने ले लिया और उसको हमने ड्रॉ कर दिया फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू ए स्केल. स्केल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली देयर इज a distance of Delhi, there is a distance of let's say 500 kilometer. Okay, what is this now? 500 kilometer. But when we want to draw this on a map, then we have to, because this is in kilometer. Okay, 500 kilometer we cannot draw in on a map, right? So what we have to do, we have to put a scale. We have to assume a scale. Let's say 1 centimeter. 1 centimeter is equal to, what is the scale? 1 centimeter is equal to 100 kilometer. Okay, now we can easily draw that from Lucknow to Delhi we can put 5 centimeter distance from L to D, and we can say that this is the 5 centimeter, right? So, and 1 centimeter is equal to 100. It means that the distance between the Lucknow to Delhi is how much? 500 kilometer. Okay, this is how. So scale is a very important thing in map, but it is impossible to flatten a round shape completely. We find that maps are useful to us for various purposes. हमको पता है that map are useful for us for various purpose. कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम मैप का यूज करते हैं. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain many facts as a big book.
कुछ मैप जो बहुत स्मॉल एरिया और स्मॉल फैक्ट्स होंगे, कुछ में थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा और कई सारे फैक्ट होंगे। जैसे मान लो एक है किसी विलेज का मैप और एक है दिल्ली का मैप। विलेज के मैप में और दिल्ली के मैप में डिफरेंस होगा, राइट। दिल्ली बड़ा है, विलेज छोटा है। When many maps are put together, we get an atlas. जब कई सारे मैप मिला दी जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एटलस। एटलसेस आर of various sizes, measurement drawn on different scale. एटलस मैप में तो एक ही स्केल रहता है, पर एटलसेस में क्या होता है? आर वेरियस साइजेस, measurement drawn on different scale, different स्केल होंगे। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब। मैप के अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, ग्लोब के अंदर तो बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मैप के अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। मैप जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड। पहला मैप है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लैनेट्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियन आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। ऐसे मैप जिनमें हम नेचुरल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे मैप क्या कहलाते हैं? फिजिकल मैप। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स showing cities, towns, villages and different countries and states of the world with their boundaries are called पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? हम सिटीज का अध्ययन करते हैं, सिटी का मैप बनाना है, टाउन का बनाना है, विलेज का बनाना है, कंट्री का बनाना है, या किसी भी देश के किसी भी स्टेट का बनाना है, और उनकी बाउंड्री भी डिफाइन करनी है कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। Some maps focus on specific information such as रोड। मान लो रोड का अध्ययन करना है तुम्हें, कितने नेशनल हाईवे हैं, एनएच कितने हैं, हाँ? या फिर रेनफॉल का अध्ययन करना है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ जंगल हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं, आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. जब हम मैप किसी चीज़ का बनाते हैं, जैसे मान लो उसका फॉरेस्ट का बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज का बनाना है, तो उसी हिसाब से मैप का टाइटल देंगे। There are three component of maps. अब मैप के तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ओके, पहला डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि भाई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर, तो ये हो गई डिस्टेंस। अब डायरेक्शन, लखनऊ से दिल्ली किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है, किस डायरेक्शन में है, राइट। तो डायरेक्शन ऐसे हम पता लगाते हैं, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये तुम्हारा हो गया ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया। और सिंबल, सिंबल किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, तो ये तीन चीजें, ये देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, ये तीन कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप क्या होते हैं? सिंपली ड्राइंग होती है विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ ए टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरे को अपने टाउन का, ये क्या, शीट ऑफ पेपर, A4 साइज पेपर, अब इस पेपर पे पूरा एक गांव तो आ नहीं सकता, या पूरा एक सिटी आ नहीं सकता है, तो लेकिन मेरे को रिप्रेजेंट करना है इसी शीट ऑफ पेपर पे, तो क्या होगा? मैप क्या होगी? मैप इज ए ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। तो हम स्केल को रिड्यूस कर देते हैं, राइट। जैसे 500 हमने उसमें स्केल माना था कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो हमने क्या किया? स्केल को रिड्यूस कर लिया। थोड़ा बड़ा बनाना है, मान लो ये तो विलेज का बनाना है, अब मान लो थोड़ा बड़ा बनाना है,
सिटी का बनाना है तो उस हिसाब से स्केल रख लो, ऐसे। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places are is real. ये डिस्टेंस हमें इस तरीके से, ये स्केल इस तरीके से बनाना पड़ता है कि एक्चुअल में अगर हम नापें, अगर उसमें नापें कि भी ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर भी होनी चाहिए। अगर तुमने इसको 4 सेंटीमीटर मैप में शो कर दिया 4 सेंटीमीटर तो ये 400 माना जाएगा। तो बहुत केयरफुली हम इसको बनाते हैं। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स लार्जर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर डिस्टेंस ऑन पेपर, और जब हम उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लार्जर स्केल ऑन दी लार्जर डिस्टेंस ऑन दी ग्राउंड। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस, इसलिए हम स्केल यूज करते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ओके, तो स्केल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल? स्केल क्या होता है? स्केल इज ए रेशियो, किस किस का रेशियो? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? 500 किलोमीटर, और पेपर में कितनी शो हो रही है? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 10 किलोमीटर। तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 किलोमीटर ऑन ए मैप, तुमने स्केल मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter map will show 5 kilometer on the ground, right? अगर हम 10 किलोमीटर को क्या 2 सेंटीमीटर हमने पेपर पर नापा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। Thus, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। किसी भी मैप में स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। विदाउट स्केल it is very difficult to draw a map, right? If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर तुम्हें स्केल पता होगा तो इट विल बी, तुम बहुत आसानी से कैलकुलेट डिस्टेंस नाप, मान लो 5 सेंटीमीटर आया और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 5 किलोमीटर, तो 5 इंटू 5 25 किलोमीटर आ गया। बहुत इजीली यू कैन calculate the distance between two places on the map. Okay, when large area like continents, countries are to be shown, और जब हमें किसी लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। जब लार्ज एरिया को करना होता है हमें स्मॉल स्केल लेना पड़ेगा। भाई लार्ज एरिया होगा, लार्ज डिस्टेंस होगी, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का बनाना चाहूँ मैं, तो ये लार्ज एरिया है। अब लार्ज एरिया है, लखनऊ से लेकर मान लो गाजियाबाद तक की डिस्टेंस नापना चाहूँ तो लार्ज डिस्टेंस लार्ज हो गई, तो तुम्हारा स्केल क्या होगा? स्मॉल। स्मॉल स्केल लोगे तो लेट्स से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, देन यू कैन इजीली ड्रॉ ऑन ए पेपर, राइट? तो जब लार्ज एरिया का करना होता है स्मॉल स्केल लेना पड़ेगा, और जब स्मॉल एरिया का करना हो, जैसे विलेज का करना हो, अब विलेज तो मान लो 1 किलोमीटर का होगा मैक्सिमम, तो तुम्हें स्केल क्या लेना पड़ेगा? लार्ज स्केल लेना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप और इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। जब छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो लार्ज स्केल मैप, और जब बड़े एरिया को करना हो तो स्मॉल स्केल मैप। ओके, पहला कंपोनेंट डिस्टेंस, दिस इज डन, राइट? नाउ डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने बताया था ऊपर वाला जो क्या, मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो मार्क विद द लेटर एन। मैप में बता शो कर देते हैं कि भाई ऊपर वाला नॉर्थ का हिस्सा, वैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्थ ही होता है। upper right hand corner, this shows the north direction, it is called the north line. When you know the north you can find out the other direction, for example east, west, south। north पता है तो नीचे south हो जाएगा।
इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार तुम फिर और जो फर्दर वो है डायरेक्शन, जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट के साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के नॉर्थ वेस्ट हो गया, राइट डायरेक्शन। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इसका बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर देन एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन डायरेक्शंस की वजह से हम और एक्यूरेटली उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। फाइंड आउट फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम फिगर 4.1। Direction of community center, the playground from Vikas home. Vikas home community center is this one, right? और विकास का होम ये है। अब विकास के होम से यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, कहाँ कहाँ की डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड और स्कूल और शॉप, इन सब की तुम्हें डायरेक्शन यहाँ से तुम्हें निकालनी है। राइट, अब ये नॉर्थ है तो ऑब्वियसली कम्युनिटी सेंटर क्या हो गया, विकास के घर से नॉर्थ में हो गया, राइट। अब ये विकास के घर से कहाँ पे हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, राइट। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की सहायता से भी हम डायरेक्शन निकालते हैं। कंपास, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम डायरेक्शन निकालते हैं। इट इज ए मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इसमें एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, जो कि किसको पॉइंट करती है, ऑलवेज नॉर्थ और साउथ है। ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, नेक्स्ट इज सिंबल। इट इज थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। पहला हमने किसके बारे में पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था डिस्टेंस, दूसरा हमने पढ़ा डायरेक्शन, और तीसरा जो थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मैप का होता है वो होता है सिंबल। इट इज not possible to draw a map with the actual shape and size of different features such as building, road, bridge, trees, railway line or a well। अब आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लो बिल्डिंग रिप्रेजेंट करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैप के अंदर बिल्डिंग बना दोगे, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को हम किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो बिल्डिंग का ये वाला शेप ले लो, ये, राइट, ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग का, राइट। ऐसे ऐसे जैसे ये तुम्हारा बिल्डिंग का हो गया, ट्री के लिए ये शेप हो गया, सिंबल हो गया, सॉरी। तो अब ट्री रिप्रेजेंट करना तो ऐसा तो है नहीं, पेड़ खड़ा कर दोगे पेपर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे ट्री का। सो दे आर शोन बाय सर्टेन लेटर, शेड, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। दिस सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस, क्योंकि पेपर के ऊपर हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है। तो अगर हम इसको सिंबल को रिप्रेजेंट कर देंगे तो अच्छा, यहाँ मैप को देख कर पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ नदी है, अच्छा यहाँ रेलवे लाइन है, अच्छा यहाँ बिल्डिंग है। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read, even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction. You can collect information from map से information ले सकते हो with the help of these symbols। इन symbols की सहायता से मैप से, मान लो तुम दिल्ली गए, दिल्ली तुम पहली बार गए हो तो तुम्हें दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, तो तुम क्या करोगे, दिल्ली का मैप खरीद लो, उसमें से इंफॉर्मेशन लेते रहो और उसको पढ़ते रहो मैप को, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये एरिया इधर पड़ेगा, ये एरिया इधर पड़ेगा, ये एरिया इधर पड़ेगा। तो मैप में नई जगह जाते हैं पहले लोग, अब आजकल तो गूगल मैप चल रहा है, गूगल मैप में लोकेशन डालो
और वो आपको सब रास्ता वास्ता सब बताते हुए जाएगा और उसको फॉलो करते रहो, पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे। लेकिन पहले के ज़माने में जो गूगल मैप नहीं था तो लोग जिस भी नए एरिया में जाते थे वहाँ का मैप खरीद लेते थे। मैप से सब इन्फॉर्मेशन पता लग, अच्छा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, राइट। ऐसे देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपको पेड़ रिप्रेजेंट करना है और आप उसकी जगह कोई दूसरा सिंबल यूज कर लो, तो वहाँ यहाँ का एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि भाई पेड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यही सिंबल यूज करेंगे, पोस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करेंगे, टेम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करेंगे, नदी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करेंगे, रेलवे रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करेंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिफाइंड है, हमको ये स्टैंडर्ड यूज करने हैं। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, जहाँ जहाँ ब्लू आता है, जैसे ये है ब्लू, राइट, रिवर। ये ब्लू किसके लिए, जहाँ जहाँ पानी शो करना हो। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। ओके, दिस इज हाउ वी सो। अब तुम ये देखो, ये है, अब मान लो ये रेलवे लाइन है, ये पौधे हैं, ये टेम्पल है, ये स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है। इसको मैप को देखो, पता लग गया ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये यहाँ नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसको देख कर पता लगा लोगे। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग, रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब इस रिवर ये इसने बताया है कि ये इधर से आ रही है और इधर जा रही है, राइट। व्हाट काइंड ऑफ रोड passes by the side of village डुमरी, डुमरी है, डुमरी विलेज, तो डुमरी विलेज व्हाट काइंड ऑफ रोड passes, कौन सा रोड जा रहा है, ये कैसा रोड है। ओके, now sketch. Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. एक टर्म होती है स्केच। स्केच ये मैप नहीं होता, स्केच मैप नहीं होता। स्केच क्या होता है, एक ड्राइंग होती है जो कि हम मेमोरी, अच्छा हमने देखा तो था, जैसे पुलिस वाले कोई अपराधी अपराध करके भाग जाता है तो फिर उससे पूछते हैं जिसके साथ अपराध हुआ होता है कि भाई बताओ कैसे कैसे आदमी था, तो वो लोग उसके क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं। समटाइम्स ए रफ drawing is required of an area to tell where a particular place is located with represent to other places। हाँ, कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भाई एक रफ बनाना है, रफ ड्राइंग बनानी है, तो भाई इधर इधर है, इधर इधर है, ऐसे करके उस पर एक पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मैप नहीं होता है। मैप में तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, स्केच में ये कुछ भी नहीं होता है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में टेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे ऑफ हिज हाउस। पेपर अच्छा है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे, तो इसको बोलेंगे स्केच है। सच रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट द स्केल, इट इज कॉल्ड, इसमें स्केल नहीं होता है, स्केच में स्केल नहीं होता है, विदाउट स्केल होता है। प्लान, अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया को ड्रॉ करना है किस पे, लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप जो है वो सारी इंफॉर्मेशन बताता है, हर एक गली की इंफॉर्मेशन। मान लो एक गांव का बनाना है तो गांव में कितने रोड हैं, कितने कौन सा रोड किधर जा रहा है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। स्मॉल एरिया है तो लार्ज स्केल पे बनाना है
तो ये लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सारी इंफॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which we may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room. अच्छा, एक घर का मान लो नक्शा बनाना है, तो कमरे की लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, विच कांट बी शोन इन ए मैप, तो उसको हम मैप में शो नहीं कर सकते. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान. ओके, तो हम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा 2 BHK फ्लैट, इसमें ये इतना इतना इतने बाई इतने के कमरे होंगे, इतने बाई इतने के ये होगा, यहाँ गैलरी होगी, यहाँ किचन होगी, यहाँ वॉशरूम होगा, या ड्राइंग एरिया होगा, राइट. तो उसको हम बोलते हैं प्लान. वो मैप नहीं है, स्केच नहीं है, वो क्या है, प्लान. ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चंस. अब जैसे मान लो ये है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना हो तो कौन सा मैप कहलाएगा फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो ये थीमेटिक मैप, right? Similarly, you can do all these questions and let me know in case of any difficulty or problem. I'll definitely get back to you. Please comment me out your question. Okay, thank you very much.